Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansaar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss about the communication or NOC from the previous auditor in case of tax audit. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansaar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. And also, my request to all of you, please like the video and share with your friends so that maximum members can take the benefit of this video. So regarding the communication or the NOC, कि आपने जो in case of tax audit, because now it's the time of tax audit, so on this regarding the communication from our communication uh, to the previous auditors, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है इन 2 videos. But again, many confusions are there. I have received many queries on this communication or the NOC. So again, trying to do this in case of tax audit, because now it's the time of the tax audit. So वो video भी आप दोनों, you can check it from the CA Sansaar YouTube channel. We will also give you the link in the I button. तो उसको भी आप एक बार चेक कर लेना, because today we will discuss about the tax audit कि whether NOC required, कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं कि हमें प्रीवियस ऑडिटर से लेना है इन केस ऑफ एक्सेप्टिंग एनी टैक्स ऑडिट, या ओनली कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, कम्युनिकेशन वर्बली या कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड. सो एंड व्हाट्स द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपने कम्युनिकेशन करना है तो कैसे कम्युनिकेशन करना है, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू SMS या थ्रू ईमेल और थ्रू लेटर, कैसे आपने कम्युनिकेशन करना है. तो ऑल दिस गिवन इन द Clause 8 of Part 1 of First Schedule of the Chartered Accountant Act 1949. So Clause 8, it talks about a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accepts a position as auditor previously held by another chartered accountant, or a certified auditor who has been issued certificate under the restricted certificate rules 1932 without first communicating with him in writing. So see the word in clause 8 of part 1 of first schedule of chartered accountant act. It talks about if a chartered accountant in practice accept any position as auditor. तो सिर्फ टैक्स ऑडिट नहीं है, अगर आप कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करते हो, either it's a statutory auditor, either it's a internal auditor, either it's a tax audit, कोई भी बैंक ऑडिट, कोई भी ऑडिट एज ऑडिटर आप एक्सेप्ट करते हो प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो जो सर्टिफाइड का नाम है कि अगर ऑलरेडी किसी ने टैक्स ऑडिट किया जो आपका प्रीवियस ऑडिटर है, विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग, तो गिल्टी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. सो here the word is without first communicating with him in writing. So आपको communicate करना है to the previous auditor. So now it's clear कि nowhere it's mentioned कि आपको previous auditor से NOC लेना है. आपको कहीं भी mention नहीं है कि आपको NOC लेना है. Only you have to communicate in writing with the previous auditor. And second thing, the audit can be accepted only after a reasonable period has elapsed after the delivery of the letter. इसके ऊपर भी अभी हम डिस्कस करेंगे. जो कम्युनिकेशन है उसके इमीडिएट आफ्टर आप एक्सेप्ट ऑडिट स्टार्ट कर सकते हो या कितने टाइम में आपको स्टार्ट कर सकते हो, दैट वी विल डिस्कस. बट फर्स्ट थिंग इज क्लियर, नो नीड ऑफ एनी NOC. कोई NOC नहीं लेना है. ओनली जो आपका क्लोज 8 टॉक्स अबाउट इज द रिटन कम्युनिकेशन. आपने रिटन कम्युनिकेशन करना है टू द प्रीवियस ऑडिटर. एंड सेकंड थिंग, जो आपने जो रिटन कम्युनिकेशन करना है, दिस इज बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंड नॉट बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट. कि अगर आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो टैक्स ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको रिटन कम्युनिकेशन करना है टू द प्रीवियस ऑडिटर and not before signing the tax audit report. And second thing, you must have the proof of evidence.
of communication reaching to the previous auditor. And another thing is, therefore a RPAD letter is advisable कि किस मोड में भेजा है. तो काउंसिल ने डिसाइड किया है कि आपने किस मोड में यू कैन सेंड टू द प्रीवियस ऑडिटर्स. तो बट वन थिंग इज क्लियर, एनओसी की कोई जरूरत नहीं है, ओनली रिटन कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड. सेकेंड थिंग, आपको जो ये कम्युनिकेशन करना है बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, टैक्स ऑडिट इन दिस केस, and not before signing the report. And another thing is, जो ये mode of communication है, किस मोड में कम्युनिकेट करना है आपने. So in the opinion of the council, the following would be the normal course provided such evidence. First is communication by a letter sent through registered acknowledgement. कि अगर आपने कोई registered acknowledgement के थ्रू कोई लेटर भेजा है, then it's a valid written communication. Second, if you are sending through by hand, then also there should be a written acknowledgement. And third, acknowledgement of the communication from retiring auditors wide email address registered with the institute or his last known official email address. तो ईमेल के थ्रू भी आईसीआई ने पीछे कोविड टाइम में दे हैव अलाउड कि यू कैन आल्सो सेंड थ्रू द ईमेल. सो दीज आर द मोड इन विच यू कैन सेंड ए रिटन कम्युनिकेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर. एंड देन द कम्युनिकेशन, अगर आपने कम्युनिकेशन कोई भेजा है थ्रू लेटर एंड इट केम्स बैक, उसमें ये रीजन आता है कि ऑफिस फाउंड लॉक्ड, तो इट डीम्स टू बी रिसीव्ड, डीम टू बी डिलीवर्ड. अगर आप ये यू हैव सेंड थ्रू द रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट एंड इट केम बैक थ्रू द रीजन ऑफिस फाउंड लॉक्ड, तो इट मीन्स इट शैल बी डीम्ड एज हैव बीन डिलीवर्ड टू द प्रीवियस ऑडिटर. एंड देन आप अगर ये कहते हैं कि ये सिर्फ पोस्ट कर दिया, देन इट्स नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ. एंड अगर आपने सिर्फ फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू यू हैव सेंड द कम्युनिकेशन, then it's not a valid communication. Clear? Then next, responsibility. आपने तो written communication भेज दिया to the previous auditor या retiring auditor. Now what's the responsibility of the previous auditor? तो जो retiring auditor है, retiring auditor should send a reply. जो एक ICI ने mention किया, he should send a reply as soon as possible, sending out the detail in reasons which according to him had given rise to the change and other amendment attendant circumstances, but without disclosing any information as regard the affairs of the client without he is not competent to do. तो रिटायरिंग ऑडिटर जो है ही शुड रिप्लाई. तो इसमें दो केस हो सकते हैं. फर्स्ट थिंग, रिटायरिंग ऑडिटर कोई रिप्लाई नहीं करता. सेकंड थिंग, वो रिप्लाई करते हैं. अगर रिटायरिंग ऑडिटर जो आपका प्रीवियस ऑडिटर है, आफ्टर यूर कम्युनिकेशन इफ ही रिप्लाइज, तो उसमें यू हैव टू सी द रीजंस कि इफ देयर इज एनी प्रोफेशनल रीजंस, जिन रीजंस में आपको ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. या फिर वो रिप्लाई ही नहीं करता, देन व्हाट टू डू. सो फर्स्ट थिंग, अगर कम्युनिकेशन फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर, अगर जो आपका रिटायरिंग ऑडिटर्स है, अगर वो कोई कम्युनिकेट करता है, आपको रिप्लाई करते हैं, देन यू हैव टू सी द रीजंस. जो रीजंस उसने भेजे हैं, यू नीड टू इवेल्युएट इफ देयर आर सम प्रोफेशनल रीजंस जिसके बेसिस पे यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट. उसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट थिंग इज, जो प्रोफेशनल रीजन है फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑडिट. फर्स्ट थिंग, इन केस ऑफ कंपनी, अगर कोई कंपनी है, उस केस में वो कहता है कि आपने कोई कंप्लायंस ही नहीं करे कंपनी में, सेक्शन 139 या 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इन दैट केस यू शुड नॉट एक्सेप्ट. सेकंड थिंग, ये मैंने ऐड किया, इसके ऊपर भी एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है सेक्शन 288 के ऊपर, रिलेटिव और अदर्स इन एलिजिबिलिटी ऑफ द टैक्स ऑडिटर. इफ यू आर इन एलिजिबल, और अगर प्रीवियस ऑडिटर भी कहता है कि यूर जो अपॉइंटमेंट्स हैं आर नॉट एज पर सेक्शन 288, जो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, देन आल्सो यू शुड नॉट एक्सेप्ट. इन केस अगर आप एक्सेप्ट करते हैं ऑडिटर, देन गिल्टी फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. दिस इज द फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन, अगर कोई जो प्रीवियस ऑडिटर आपको रिप्लाई करता है कि मेरी तो फीस ड्यू है, इन दैट केस यू हैव टू सी वेदर द फीस जो है, नॉट पेड फीस,
this is disputed or undisputed. In case if there are undisputed fees are there, अगर undisputed audit fees है for non payment है, other than in case of sick units for carrying out the statutory under the Companies Act or any various other statutes. अगर ऑडिटर कहता है कि मेरी तो फीस ही ड्यू है, अगर फीस ही नहीं पेमेंट करी और दे आर चेंजिंग द ऑडिट, तो इन दैट केस यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट. बट दिस इज इन केस ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस. अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस कौन सी है कि मीन्स प्रोविजंस इज देयर इन द लास्ट बैलेंस शीट जो आपने अकाउंट साइन करे हैं, एंड दैट साइन बाय द ऑडिटी एंड द ऑडिटर, दोनों ने साइन करे हैं, और प्रोविजन that fees not paid is payable into the balance sheet. That's undisputed audit fees. And in case of sick unit where the net worth is negative, तो sick unit के केस में कोई इशू नहीं है. other than sick unit उन्होंने बोला है कि कोई in case of assessee, अगर आप कोई टैक्स ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन यू हैव टू सी, अगर आपने कम्युनिकेशन भेजा प्रीवियस ऑडिटर को, प्रीवियस ऑडिटर आपको कहता है कि मेरी तो फीस ड्यू है, देन यू हैव टू सी वेदर इट्स ए डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड. अनडिस्प्यूटेड मैंने आपको बता दिया. अनडिस्प्यूटेड मींस दोनों ने साइन कर रखे हैं, प्रोविजन इज देयर, बैलेंस शीट में पेबल है, तो यू कांट एक्सेप्ट दैट ऑडिट. अगर करते हैं तो गिल्टी फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. बट यस, अगर वो फीस पे कर देता है then definitely you can accept it. And second thing is if there are dispute, कुछ और disputes हैं कि अगर वो आपके कुछ अदर ड्यूज हैं फीस के अलावा, आप कहते हो जी मेरे तो इतने ड्यूज हैं, कैश में है, मेरा ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, मैंने ये टैक्स पेमेंट करी है, कुछ अदर ड्यूज हैं, देन कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है. बट एज ए ऑडिटर you should influence your client, जो भी client है, in favor of your predecessor, कि as a professional brother sister you should ask your client to pay the fees. आपको जो भी अपना influence है कि अगर उनके कुछ dues हैं, कुछ pendings हैं, you can discuss with them and pay them. You should use your influence. Okay. And next case, this is case we are discussing कि अगर previous auditor कोई reply करता है आपको, उस केस में प्रोफेशनल रीजंस है. अनदर केस इज वो कहते हैं जी मैंने तो क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करी है, दैट्स व्हाई दे आर चेंजिंग. तो अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट है देन यू हैव टू चेक, बट नोवेयर इट्स रिटन कि अगर कोई क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करते हैं और उसके बाद उसको चेंज करते हैं, देन इट्स ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. दैट्स ऑन यू. यू हैव टू चेक वेदर देयर आर गुड एंड वैलिड रीजन कि जो रिटायरिंग ऑडिटर ने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है, देन इट्स ऑन यू. यू कैन एक्सेप्ट इट और यू कैन रिजेक्ट इट. आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर, कि उसका जो एटीट्यूड है प्रॉपर नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, या कुछ ऐसे ही कुछ उसने क्वालिफिकेशन दे दिए, दैट यू हैव टू चेक. बट नो वेयर इट्स रिटन कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट यू कांट एक्सेप्ट द टैक्स ऑडिट या अदर ऑडिट आल्सो. एंड नाउ अनदर केस, अभी तो हमने केस देखा कि रिप्लाई बाय द प्रीवियस ऑडिटर. नाउ नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर, कि आपने कम्युनिकेट तो कर दिया प्रीवियस ऑडिटर को आइदर थ्रू मेल और थ्रू एक्नॉलेजमेंट, अपने रिटर्न एक्नॉलेजमेंट के थ्रू कर दिया या हैंड डिलीवरी के थ्रू कर दिया, बट नो रिप्लाई. देन इट्स टॉक्स अबाउट कि आफ्टर रीजनेबल टाइम. अब रीजनेबल टाइम क्या है? नो वेयर इट्स मेंशन रीजनेबल टाइम. क्लोज 8 में भी नहीं मेंशन कहीं शेड्यूल में कि रीजनेबल टाइम है, बट यस इन जनरल प्रैक्टिस वी गिव सम टाइम. लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ईमेल आपने भेजी तो 24 आवर्स और 48 आवर्स इज सफिशिएंट टाइम, बिकॉज नाउअडेज ऑल प्रोफेशनल्स अपनी मेल्स चेक कर लेते हैं 24 घंटे में, तो चेक ही कर लेते हैं 48 आवर्स में. तो यू कैन एक्सेप्ट द एंड स्टार्ट द वर्क. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, यस आई हैव टू स्टार्ट इमीडिएट वर्क, देन यू कैन एक्सेप्ट कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हो. उसमें आप लिख सकते हो सब्जेक्ट टू जो भी एनी फीडबैक फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर्स है, उसमें आप अपने जो भी आप उनको एक्सेप्टेंस दोगे, तो आप एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस में आप लिख सकते हो कि वी हैव सेंड द कम्युनिकेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर्स, and in case we have not received any communication within 24 hours या 48 hours या 72 hours, then it's accepted. But in case if there are some big issues, yes these are there, then it's not accepted. That you can do the conditional acceptance. So
नाउ इट्स क्लियर कि जो आपको एनओसी का लोग कहते हैं कि हमने एनओसी नहीं लिया प्रीवियस ऑडिटर से, एनओसी नहीं लिया, नो वेयर इट्स मेंशन कि एनओसी आपने लेना है. ओनली रिटन कम्युनिकेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर एंड दिस इज मैंडेटरी. Written communication is mandatory and communication by the previous auditor, जो previous auditor communicate करे, that's recommendatory. ICI ने बोला है कि he should reply, but नहीं भी करते then no issue, you can start your work after reasonable time. But NOC कहीं नहीं है, written communication is mandatory. रिटायरिंग ऑडिटर आपको रिप्लाई करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक. So this is all about NOC or the written communication. So even after that, you have any query, you can send your mail or you can call me. But my request to all of you, once again I am saying कि आप जो हमने इसमें डिटेल्ड वीडियो, दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट, बट डिटेल्ड में हमने व्हेन इट्स मैंडेटरी, व्हेन इट्स रिकमेंडेटरी, पूरा डिटेल में 2 वीडियो बनाए हुए हैं हमने. रिटन कम्युनिकेशन टू द प्रीवियस ऑडिटर एंड रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर, उसको आप डिटेल में चेक करो. उसके बाद भी अगर कोई आपकी क्वेरीज है then you can call me, we will discuss later on. So thank you very much, bye bye, take care.